Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagwati classes, and today in this class, I'm gonna discuss about some important questions related to Indian economic development. So let's get started. So the first question is: Dash and dash are the reasons for the slowdown of the Pakistan economy since independence. इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसकी गति को जो कम किया था वो दो रीजंस ने कम किया था. तो कौन कौन से दो रीजंस हैं इसमें? द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेकेंड ओवर इंडिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, थर्ड stable performance of agriculture sector, fourth growth of service sector. So the answer is political instability and over independence on remittance from abroad. So these two are the reasons for the slowdown of the Pakistan economy since independence. So the correct option is A, first and second. Now, the second question is: identify which of the following indicates the adverse impact of British rule in India. The first one is introduction of communication network in India. Second, change in composition of India's foreign trade. Third, introduction of modern administrative system in India. And fourth, introduction of railways in India. So the correct answer is change in composition of India's foreign trade. Now, the third question is: Dash committee was set up for the development and promotion of small scale industry in India. The first option is Carve committee, second Tapas Majumdar, and third Mahalanbonis, and fourth Trisem. तो इसमें से कौन सी कमेटी है? तो इसका आंसर है कार्व कमेटी. कार्व कमेटी जो है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते थे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज Village and Small Scale Industry Committee, and which was set up in 1955. So the answer is CARV Committee. Next, first industrial policy resolution of independent India was announced in the year 1947, 1948, 1951 and 1956. So the correct answer is 1948. Second option is the correct answer. Now the next question is fifth question: GLF with respect to the People's Republic of China referred to as A, giant leap forward, B, great lead forum, C, great leap forward, and D, giant lead forum. So the correct answer is great leap forward. Next, sixth question: identify which of the following is a source of non-institutional credit in the rural areas of India. The first option is NABARD, second Regional Rural Bank, C, money lenders, D, commercial banks. So the correct answer is money lenders. Money lenders, landlords, village traders are the three important sources of non-institutional rural credit. ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट जो है वो उसके जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. यहाँ पे ये थोड़ा रूरल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये थोड़ा सही कर लेना. रूरल की इसकी स्पेलिंग आ जाएगी RURAL. ओके, so the correct answer is money lenders. Next, seventh question is read the following statement carefully. अब ये दो स्टेटमेंट हैं, अभी हम इसमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है. क्या पता दोनों ही सही हो और क्या पता दोनों ही गलत हो. तो हम इसको रीड करते हैं. स्टेटमेंट 1: ऑन द जॉब ट्रेनिंग help to bridge a gap between theoretical concepts and practical experience. ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो दी जाती है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बीच जो गैप होता है उसको क्या करता है? ब्रिज करता है. ठीक है, उसमें ये मदद करता है. तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2: ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विथ द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड.
ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं वर्क फील्ड में उससे वो अपडेट करता है ना। तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें से कौन सा कॉज नहीं है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का? फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट मैनेजमेंट, सेकंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड फोर्थ गार्डिंग ग्रीन कवर। तो कौन सा है इसमें, कौन सा कॉज नहीं है? तो वो है गार्डिंग ग्रीन कवर। तो कॉज कौन कौन से हैं इसमें? जो वेस्ट मैनेजमेंट है, डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ये कॉजेज हैं किसके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। क्लियर है? तो ये कॉज नहीं है और ये बाकी सारे क्या हैं, कॉज हैं। ये कॉज है, ठीक है। और गार्डिंग ग्रीन कवर जो है ये कॉज नहीं है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। क्लियर है? नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, डैश इज नॉट द स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूज ऑफ बायोगैस, यूज ऑफ सोलर पावर, यूज ऑफ थर्मल पावर, यूज ऑफ हाइडल पावर। तो इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं है? तो हम इसमें बात बताएं तो इसका जो आंसर है वो है यूज़ ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जो कि लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। एक तरीके से उसका कॉज है लैंड एंड वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसमें स्ट्रेटजी कौन सी नहीं है, यूज़ ऑफ थर्मल पावर। और जो स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सी है, use of biogas, use of solar power and use of hydel power are the strategies for sustainable development, but the use of thermal power plants is not the strategy for sustainable development. Next question is 10th, dash adopted one child policy as a measure to control population. First option is India, B Pakistan, C China, D Russia. So the correct answer is China. China adopted one child policy as a measure to control population. Clear है? तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मतलब ये फ्रेम किए हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से जो 1 मार्क्स जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं बाकी और वीडियोस में लेकर आऊँगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको इसमें जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और बाकी और स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊं। एंड कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी, ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप इसे करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से क्या है बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। And if you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.